নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা আপুনি চাই আছে সচ দ্য ৰিয়েলিটি আজি 15 আগষ্ট ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস আশী সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছো সকলোলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাল কিল্লাত সমগ্ৰ দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি স্বাধীনতা দিৱসৰ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নতুন দিল্লীৰ ঐতিহাসিক লাল কিল্লাত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তোলন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি লাল কিল্লাৰ বাকৰিত তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় পেৰেড হ'ব তিনি বাহিনীৰ স্থলসেনা নৌসেনা বায়ুসেনা বাহিনীৰ আকৰ্ষণীয় কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন হ'ব আমি আপোনাক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাম অসমত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বিশেষ আয়োজন আৰু সেই দৃশ্যও আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনাক দেখুৱাম এই সহবিস্তাৰে আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আপডেট আজি 15 আগষ্ট ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস আশী সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা সকলোলৈ আমি জ্ঞাপন কৰিছো সচ দ্য ৰিয়েলিটিৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক হ্যাপি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে নতুন দিল্লীৰ ঐতিহাসিক লাল কিল্লাত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তোলন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছে তেওঁ লাল কিল্লাৰ বাকৰিত ৰাষ্ট্ৰীয় পেৰেড হ'ব তিনি বাহিনীৰ স্থলসেনা নৌসেনা বায়ুসেনাৰ আকৰ্ষণীয় কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন হ'ব আমি আপোনাক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাম অসমত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বিশেষ আয়োজন গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা খেলপথাৰত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ মূল কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰা হৈছে খানাপাৰা ত্ৰিৰংগা উত্তোলন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ মহান শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে আৰু ইয়াৰ পাছতে অসম আৰক্ষীৰ পেৰেড আৰম্ভ খানাপাৰা খেলপথাৰত আৰক্ষী আৰু সুৰক্ষা বাহিনীৰ কুচকাৱাজ স্বাধীনতা দিৱসৰ পবিত্ৰ ক্ষণত দেশপ্ৰেমৰ আবেগত মুখৰিত সমগ্ৰ দেশ সৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে ঘৰে ঘৰে উৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা হ্যাপি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছো জয় হিন্দ ভাৰত মাতা কি জয় জয় আই অসম এয়া কালিৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো এনেধৰণে গুৱাহাটীত বিশেষ ৰেলী বাহিৰ কৰা হৈছিল আৰু খানাপাৰাত এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী লাল কিল্লাত প্ৰত্যেক বৰ্ষত স্বাধীনতা দিৱস লাল কিল্লাৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হয় সকলোৱে জানে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশবাসীক সম্বোধন কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আপোনাক আমি দেখুৱাম খানাপাৰাৰ দৃশ্যাংশ খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী আৰু সেই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তাৰ পূৰ্বে তেওঁ বীৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে আমাৰ বীৰ শ্বহীদসকলৰ বাবে আমি আজি স্বাধীন আমাৰ বীৰ শ্বহীদসকলৰ ত্যাগৰ বাবে আমি আজি মূৰ দাঙি থিয় হৈছো আমাৰ বীৰ শ্বহীদসকলৰ ত্যাগৰ বাবে আমি আজি ইমান ধুনীয়াকৈ স্বাধীন হৈ জীয়াই আছো আমাৰ প্ৰতিগৰাকী বীৰ শ্বহীদক সচ দ্য ৰিয়েলিটিৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰতিগৰাকী শ্বহীদক আমি পাহৰিব নালাগিব শ্বহীদসকলৰ ত্যাগৰ কথা আমি পাহৰিব নালাগিব শ্বহীদসকলৰ সেই তেজৰ কথা কেৱল ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শ্বহীদসকলৰ কথা আমি কোৱা নাই অসমৰ শ্বহীদসকলৰ কথাও আমি পাহৰিব নালাগিব শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি কনকলতা বৰুৱাৰ কথা আমি পাহৰিলে নহব প্ৰতিগৰাকী বীৰাংগনা প্ৰতিগৰাকী বীৰৰ কথা আমি পাহৰিলে নহব সমান্তৰালকৈ আমি পাহৰিব নালাগিব যে বিভিন্ন সময়ত কুটাঘাতমূলক পৰিস্থিতিৰ সময়ছোৱাত বহু নিৰীহই প্ৰাণ দিছে আমাৰ দেশৰ বাবে 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱসৰ এটা বিশেষ কলা দিন আছিল 2004 চন 2004 চনত কি হৈছিল সকলোৰে হয়তো মনত আছে 2004 চনত এক কলা অধ্যায় ধেমাজিৰ বাবে আছিল ধেমাজিৰ সেই কৰুণ স্মৃতি আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো 2004 চনত তিনিটাকৈ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত ভয়ংকৰ ধ্বংসলীলা চলিছিল 9 গৰাকী নিৰীহই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল আৰু সেই 9 গৰাকী নিৰীহলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাল কিল্লাৰ বাকৰিত ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি পোনপটীয়াকৈ আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰিছো से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है इतना ही नहीं केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल ये हमारा समुद्री तट हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफटीए के कारण हमारे स्वीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए
हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अगला 1/4 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा। हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्सन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को
लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो। हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी 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 होना चाहिए। यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास। लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे श्रिप यानी झींगा, उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए, हम आगे चलते हुए, हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है, उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन বিয়া জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.